Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Mama Shujaz. You're watching me on my YouTube channel. You're listening to me on Spotify. हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सदफ हैदर। बात करें हम पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ड्रामे which constantly we love, they get us triggered they, in a good way, in a bad way. So सदफ कैसी हैं आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. I'm good, and it's always good to speak to you. Yes, Mm. Sadaf, and talking about Pakistani dramas, which is our pet passion. A lot of things are happening, Sadaf, Twitter sphere पे, Pakistani drama sphere पे, as always, lot of पड्डाज मेरी तरफ तो का रुख जो अक्सर हो जाता है वो भी हुआ है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, let's get straight into it. No beating about the bush, no avoiding the storm. मेरी जिंदगी है तू, which has replaced, मैं मंटो नहीं हूँ। तो सदफ क्या कहेंगी आप? आपने देख ली दो फर्स्ट टू एपिसोड्स एयर हुई हैं, और स्टारिंग हानिया आमिर एंड बिलाल अब्बास and written by Radhen Shah, directed by Musaddiq Malik. So, what was your take? उन्हें एक सरखपाई खत्म हुई है, दूसरी सरखपाई शुरू हो गई है. And like there was something about मैं मंटो को they had this amazing cast, and also at least the premise underneath all the nonsense there And the was problematic stuff, हाँ, there was, हाँ, ठीक है, yeah. there was some nonsense in there, but chalo problematic relationship between a student and teacher, which was non-existent, right? Hmm, There was no chemistry, but at least there was the premise that the girl is choosing non-violence over violence and bloodshed, hmm, and choosing the toxic hero. And I think in this one as well, the girl is not Meri Zindagi Hai Tu is hmm. not actually choosing Bilal Abbas as No, a, she's not. No. but she's not. She's saying no. And this is the whole problem. Bilal Abbas is playing, क्या नाम है उसका? कामयार. Kamyar, Kamyar. कामयार, yeah. Hmm. So I think there's a big fault with the writing. Of course, he's going to get huge ratings because for some reason the public of the subcontinent love this stuff. They absolutely adore it. I watch Indian film Animal. There's another movie I think before that. Pushpa. No, thank God I didn't even watch that. But the one with the Shahid in it, Shahid Kapoor. Hmm. Kabir Singh. Yeah, Kabir Singh. And The that was, Sandeep Reddy Vanga, yeah, you yeah, know, yeah. idea of All of ideology. these movies and then dramas, अभी एक दानिश कपूर ड्रामा खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू Danish हो Kapoor, Danish Temur, जाता sort of, you have है. multiverse madness में हम जी रहे हैं. It's okay. We are that. दानिश तैमूर, Yeah. right? So I just, I don't know, maybe we should examine. But okay, before we get into the whole hypercritical thing, we need to spell it out. What is Hmm. wrong with the drama? Why are we saying that this is not okay? Before we Right. go on to that bender, let's like separate the threads here. And I think that there are multiple threads. Why don't you start with what you thought was like obviously glaringly wrong with Kamyar's character? Okay, it's not, it's a story, right? Hmm. एक लड़का है. He is, we don't know it, but there's a car accident, an almost car accident, right? Most people would say, look, thank God हम लोग ठीक हो गए. Instead he beats up the person. I think उस लड़के का नाम नादिर होता है, and he is Ira's brother. He Hmm. beats, सोचता भी नहीं है, बड़ा हीरो के माफिक एकदम गाड़ी में से निकलता है, punches him in the face, ना आ ना ता. I know there will be a lot of chavals impressed by this behavior, Hmm. right? Then, of course, later on, he meets, I think, Ira, ladki, lady doctor hoti hai, Ji. and her name is Dr. Ira. She knows her brother has been beaten up by someone with this fancy car. I think it's some kind of Tesla truck or Yeah, something. Cybertruck. Hmm. Yeah, a Cybertruck. Hmm. So there's only one in Karachi. She sees it, she deflates the tires, और फिर ना वो उस लड़के की थोड़ी सी शर्मिंदगी और बेइज्जती होती है in front of another girl. He's using women like tissue papers, एक के बाद दूसरी, एक के बाद And दूसरी. has no shame in it also. Like he's like, Right. huh, And I know. and explain to me why wealthy, well-educated women are throwing themselves at him. He's rich. Is that why? And he's good looking. एक के बाद एक आती है, एक के हाँ, बाद एक. लाइन लगी हुई है भैया, लाइन लगी हुई है. मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द सिटी.
राइट, एंड दे विलिंग टू बी ह्यूमिलिएटेड। इतनी इतनी अमीर घरों की लड़कियां, पढ़ी लिखी, आई मीन एट दैट लेवल दैट दे आर डिस्क्राइबिंग, दीज गर्ल्स हैव ऑब्वियसली स्टडीड अब्रॉड, राइट। वो कोई, यू नो, इट मेक्स नो और सेंस। जैसा ये है, इसने क्या जिंदगी में पहली दफा ही थप्पड़ खाया है आयरा से? मतलब आई डोंट। आयरा जैसी लड़की ने जिंदगी में पहली दफा इनको किसी ने कन्फ्रंट किया है अबाउट हिज बिहेवियर? Yes. So this is where the writing goes wrong. There is nothing wrong in showing that kind of person, right? या Where Raven Shah, for क्योंकि उन्होंने रेटिंग्स लेनी है, वो जो डोपामीन हिट होता है ना, वो एक्साइटमेंट और एनर्जी का, वो लेने के लिए ना, दे गो टू ridiculous heights from which it is very difficult to climb down unless you're a good writer. अब ये है कि he is got to he's obviously got to do something dramatic to prove that he's terrible. गाड़ी So गाड़ी दिला दो। yeah. So what does Radhain Shah make him do? He makes him set fire to Ira's car in revenge. I या mean, that is not a normal harkat. That is the harkat of a psychopath. He could have done something else, slashed a tire or something, and you would have said, okay, गुस्सा चढ़ा था, बिगड़ा हुआ अमीर अमीर बाप की या औलाद। आके जैसे वर्बल थ्रेट कर देता ना आके कि मैं ये कर दूंगा या मैं वो करता, कुछ फजूल बकवास है थी, लेकिन वही आपको डोपामीन हिट देने के चक्कर में ना आपने किरदार की ऐसे की तैसी कर दी। अच्छा, ये तो हो गया जो हुआ था। मैं पूछना ही चाह रही थी सदफ आपसे कि इस पूरे सिनेरियो, इन तमाम सिनेरियोज में क्या ऐसा रीजन है कि हम लड़कियों को कहें या देखने वाले लड़के भी, हम उन या हम्म। माएँ या बच्चियां या हमारे ड्रामे बच्चियां भी देख रही होती हैं, 10 10 12 12 साल की बच्चियां मुझे आके बताती हैं हम ये ड्रामा देख रहे हैं और ये चीज हमें बताएं। जब मैं जिनकी शादी उनकी शादी पे आऊंगी तो आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दैट इज वेल व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन। सो देर इज अ ह्यूज अंडर एज ऑडियंस वेदर वी लाइक इट और नॉट और वेदर वी कैन कंट्रोल इट और नॉट। तो कम उम्र बच्चियों को एक लेसन ये जा रहा है, जो हमने जेंटलमैन में भी क्वेश्चन उठाया था, या हम और भी जब भी दानिश तैमूर का कोई ड्रामा देखते हैं तो हम क्वेश्चन उठाते हैं कि ये जो पोजेसिव लव की कहानी आपने शुरू की है जिसमें आपने उसको रोमांटिसाइज किया हुआ है एक बिगड़े हुए शहजादे को, तो ये बिगड़ा हुआ शहजादा जो है ना, ये जब रियल लाइफ में आपको पड़ता है तो आपकी जिंदगी अजाब होती है। इट कैन ऑफन एंड इन फेटालिटी। जब सना यूसुफ जो टिकटॉकर थी उनकी उनका उनका कत्ल हुआ था, बहुत बेदर्दी से उनको मारा गया था, तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के जो मायनाज एक्टर्स हैं और हम्म। अदाकार हैं जो भी हैं जितने भी हैं, सबने कंडेम किया कि जी बड़ी बुरी बात है, बड़ा अफसोस हुआ फलां ढिमका। आप आप अपने एक्शन से क्या कर रहे हैं? और जब आप यहाँ आते हैं तो आप मिसोजिनी पे बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, लेकिन आप जब स्क्रिप्ट साइन करने पे आते हैं तो फिर आप, और अगर आप उनसे वाकई बात करेंगे तो वो कहेंगे जी हमें बड़ा अफसोस है और मैं मानती हूँ कि उनको अफसोस है, मैं उनकी मिजरी या उनकी कंडोलेंस को मैं ये नहीं कह रही कि ये रियल नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। लेकिन हाउ डू यू नॉट सी द the conflict here? And the conflict is that you are telling through your stories and our stories, which are such huge teachers to society and any media is, to be honest, मतलब ये सिर्फ हमारी कहानियां तो नहीं है, दुनिया भर में कहीं भी मीडिया जो होता है एक पिलर होता है अवाम को सिखाने का, उनकी उनकी जहनी एक काइंड ऑफ परवरिश करने का। आपके ड्रामे में ये दिखा रहे हैं कि ये लड़का बड़ा इंटाइटल्ड है, उसको थप्पड़ खाने से मोहब्बत हो गई है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब आप कोई लड़की इस तरह किसी इस तरह के हरासर को, स्टॉकर को कन्फ्रंट करती है तो वो और बिभरता है, वो उसके नो पे उसको कत्ल भी कर सकता है। और ये रियल के फैक्ट्स हैं, ये वाकयात मौजूद हैं कि आप इस वक्त गूगल सर्च डाल के देख लें, वुमन मर्डर्ड बिकॉज शी रिजेक्टेड A समथिंग, proposal. अ प्रपोजल। पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में ये नहीं है, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ही होता है। तो हम ये भी वो हटा देंगे, नहीं नहीं जी गांव देहातों की स्टोरी तो नहीं है, जैसे मॉडर्न अर्बन स्टोरी, मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज में भी यही हो रहा है बॉस। सही है। तो मेरा, राधेन शाह, आपसे तो बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये कहानियां लिखनी बंद कर दें। और हमारे चैनलों से भी मुझे रिक्वेस्ट है, GOARY जो भी है, कि प्लीज ये कहानियां बनानी बंद कर दें। हमारी छोटी बच्चियां ये देख रही हैं, हमें लगता है कि लड़की गुंडा बन के लड़के को थप्पड़ मारेगी तो लड़का आगे से जो कहेगा ओ माय गॉड कितनी प्यारी है, कितना प्यार का थप्पड़ था ये। That does not happen. दैट डज नॉट हैपन, दैट डज नॉट हैपन। And it is so harmful that we are peddling this delusional nonsense to children, to women, and we are what are we saying to men also, by the way? हम मैं औरतों की बातें कर रही हूँ, हम मर्दों को क्या स्टोरी सुना रहे हैं ये? हम मर्दों को ये स्टोरी सुना रहे हैं कि तुम एंटाइटल्ड हो, तुम बदतमीज हो। इट्स ओके, जरा सा एक थप्पड़ खा लो, लड़की मान जाएगी। Hmm. No, I think there's also this problem. There's a vast array of people that will say, क्योंकि वो mature होते हैं and they know that they have limits,
right? जो and so when I say अच्छा ये क्या हो रहा हम्म है स्क्रीन, एंड हम्म पीपल से यार ड्रामा है, थोड़ा सा हम्म ड्रामा ड्रामेटिक होने दो, मेलो हम्म ड्रामा होना चाहिए, वरना इट्स जस्ट एवरेज लाइफ। क्या ऐसे कैमरा बाहर लगा दें, अगर हम्म कुछ हरकत नहीं करेगा, कुछ एग्जैजरेटेड हरकत नहीं करेगा, तो ये हम्म क्या, who will watch the story, what is the interest there? हम्म My answer to those people और सबको यही है कि देखो आप लॉजिकली पेश करें। अगर राधेन शान दिखाते कि ये लड़का जो है ना बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत गलत है, आई एम नॉट स्टॉपिंग दैट, हम्म राइट? दिस इज अ फॉल्ट इन द राइटिंग विद इन द हम्म स्पेस of one episode. हम्म Bilal Abbas, and I give him credit for this. I know a lot of people are criticizing his acting, but No, personally, he's not a bad actor. He's a good actor. None of this changes that. I've seen him in what was that thing with Sajal, right? I've forgotten now. Oh Angreza. Aurangzeba, Okay. one of my So all-time favorites. yeah, so he's a good actor, and he actually, I mean, to his credit, he kind of carried it. Okay, within 2 episodes, he turned from psychotic drunkard, a female abuser to love-struck puppy. तो उसकी आंखें यूं हैं, तो वो अपनी दादी के पास, एंड दिस इज एन इंडियन स्टाइल ड्रामा, एक्सेप्ट इंडियन स्टाइल ड्रामाज आई गिव देम क्रेडिट, वो एटलीस्ट 20-30 में भी 100 एपिसोड्स लगाएंगे उस लड़के की चेंज, रिहेबिलिटेशन में. रिहेबिलिटेशन में। हम्म. हमने तो 2 एपिसोड लिए बिकॉज लेट्स गेट टू द रेटिंग्स, राइट? हम रेटिंग्स की तरफ अपना पिवट करें जल्दी से। सो दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद दिस ड्रामा। आई डोंट केयर, यू वांट टू शो बिगड़ा हुआ, बिगड़े दिल शहजादे, एक टाइप ऑफ कैरेक्टर, ही वाज टेरिबल, ही वाज मिसोजिनिस्ट, राइट? लेट हिम ग्रो अप, देन गिव हिम 10 एपिसोड्स, गिव हिम 3 एपिसोड्स, गिव हिम 4 एपिसोड्स टू शो अ चेंज ऑफ आर्ट। नहीं, एक से दूसरी, बिकॉज and then of course there are Bilal's fans, अरे ना करो, and I understand that। हम लोग जो भी हैं, आई एम फैन ऑफ अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड व्हाटएवर इंक्लूडिंग बिलाल, तो दिल करता है इतना प्यारा है, क्योंकि वी नो बिलाल इज सेफ, वी हम्म. नो कि ही इज अ गुड गाय, राइट? हम्म. बट आई थिंक it is definitely a bad influence, but first of all it's terrible writing। All of it is terrible. I take a far more hard line to this. I think it is all terrible. It is all in bad taste. None of these guys, like हानिया जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉलोड सेलिब्रिटी हैं, बिलाल जो के आइकॉनिक स्टेटस के बाद यहाँ आए हैं. इश्क मुर्शिद था उनका लास्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या Did किया है they उन्होंने? really need to pick this script? I really think he's going for the Danish Taimur formula, and I'm going to tick off Danish's fans and Bilal's fans both, and I don't care. You guys can spam the comments. I really don't care. मैंने इतना अरसा लगा के इस करियर में, इस दश्त की सयाही में इसलिए बाल नहीं सफेद किए कि मैं 4 फैन से डर जाऊंगी. आपको जो मर्जी लगता है आप कहें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. जो दानिश कर रहे थे वो भी गलत है. बिलाल मेरे वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स हैं. मुझे बहुत पसंद है. ही इज अ लवली पर्सन, एंड आई थिंक दैट ही डिजर्व सो मच सक्सेस in because he's a one of those genuinely talented, कोई नेपो शेपो कुछ नहीं, बिल्कुल ग्राउंड वर्क करके बेचारा आया इंडस्ट्री में. आई हैव ऑल माई लव फॉर हिम, बट ब्रो, रॉन्ग. मंटो के Mm. लिए, लाइक वी केप्ट सेइंग फॉर मंटो, हुमायूं लव, सज्जल लव, साइमा, सनम सईद, एवरीवन, नदीम बेग, एवरीवन लव, बट नो, नो 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 नो, यू कैन नॉट डू दिस. एंड अगर हम ही वो चीज नहीं बोलेंगे कि वी लव देम बट वी डोंट टेल देम व्हाट इज ऑफ हियर, देन व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर वी डूइंग? हम वो उन ब्लॉगर्स में से, उन लोगों में से नहीं हैं जो ये करेंगे जी. आई रियली हैव, मुझे ये लोग समझ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ना बनाए इस टाइप का ड्रामा, बनाए, तरीके से बनाए। अगर आपको इतना शौक है किसी की रिहेबिलिटेशन दिखाने का, तो फिर दिखाएं ना बट सदफ, रिहेबिलिटेशन। आप बहुत बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही हैं कि असल में राइटर को ये दिखाना, मुझे लगता है राइटर को नो, यही दिखाना था. राइटर आई को यही दिखाना था जो उन्होंने दिखाया है. आई एग्री। मैंने कहा नहीं है कि ही वेंट स्ट्रेट फॉर द जगुलर, कि भाई वो डोपामीन हिट्स नहीं होते कि हाँ. एक्साइटमेंट में एकदम और फिर डाउन एंड अप, वो जो मैं कहती होती हूँ इस टाइप के ड्रामे को, वो मैं नहीं था जिसमें हम्म. वहां आज थे। अनदर वन ऑफ माय फेवरेट्स, आई लव आइजा टू, हम्म. ब्रिलियंट एक्ट्रेस, लेकिन वो भी डोपामीन हिट आफ्टर डोपामीन हिट, जैसे एंड रोलर कोस्टर राइड टू नोवेयर। रोलर कोस्टर राइट. सो एनीवे गाइस, अब जितना रैंट करना था कर लिया, जितनी बात करनी थी कर ली. बट um आई हैव टू से हानिया's acting is grounded, it's yeah. very good। Yeah, she's really good in this. She's really good in this. Still terrible. Still a bad choice of script, Hania. But yeah, she's doing a marvelous job. So is Bilal.
I don't know why people think he's not convincing. I think he's very convincing. That's the problem. Yeah. He is convincing. That is the problem. So I think that he needs to, just shouldn't have chosen this. He shouldn't have done this. चलो. Apparently, I don't know how true this is, but apparently Ahad and Ramsha were supposed to do this role. Oh, well, they were wiser. But I mean, obviously, this is, look, we can already tell this is gonna get a lot of hits on YouTube because I Do think you think so? It's not become that monster hit like Danish's dramas are. Acha, well, I Not yet. think, I don't know. I just get a feeling that this is going to pick up after a while. क्योंकि इतनी, remember we said this about बिरयानी, that अब इसको इतना वो हीरो को बेचारगी दिखाएंगे ना, वो माफिया मांगते मांगते, कि हम्म थोड़ी देर तक ना आपकी वो एम्पथीज उसकी तरफ चली हाँ हाँ जाएंगी. हाँ, आई एग्री विद यू। आई थिंक ये भी वही तरीके की, वो जो कैसी तेरी खुदगर्जी में भी ये था ना, उसको जलील कर करके, उसको परेशान कर करके हीरो को इवेंचुअली अब कहते हो यार अब कर दो ना माफ, क्या हो गया। तो ये No. रिहेबिलिटेशन, हाँ ये रिहेबिलिटेशन जर्नी जो होगी ये आएगी, और फिर हम उसके बाद हमें हमें कहा जाएगा कमेंट सेक्शन में कि देखा देखा मगर उसने तो ये कर दिया था, मगर इसलिए तो हम माफ कर सकते हैं ना उसे। तो ये नहीं करो यार, नहीं करो ये। तो ये हो गया। I used to say this kind of thing, it's okay, सलमान खान कर रहा है, लेकिन अगर मदन पूरी करता तो फिर हम लोग नाराज हो जाते. दिस इज इट, बिलाल अब्बास कर रहा है तो हम कह रहे हैं कितना बजीज है. हाँ राइट, लेकिन यही वो जो कोई चवल कर रहा होता है, वो जो गली का गुंडा, तो हम कहते हैं माय गॉड. हाँ, it's that Nietzsche quote, ना? It's okay to kill a cockroach and not a butterfly because morals have aesthetics. So my morals are, they can see beyond certain aesthetics. Yes, so can mine. जी, तो अगला ड्रामा हमारे पास है सदफ, हमारा फेवरेट जमा तकसीम। कैसा रहा जमा तकसीम? कैसा आपका फीडबैक रहा? What did you think of the ultimate showdown between Cass's parents and Laila's parents? Well, it was kind of unwise, but I thought फिर भी कुछ तमीजदारी था, कम से कम गाली गलौज नहीं हुए, right? So I don't know. I mean, it's very realistic. What did you think? I loved it. I thought that this Yeah. is exactly how people should react Mm, in situations where one person is just like getting away with everything, and हमारे mm, यहाँ बच्चियों को माएँ ही ये पंजाबी में कहते हैं ना मत देती हैं, ये हम कहते हैं ना कि mm, हम ये सबक सिखाते हैं अपनी बेटियों को कि बेटा mm, चुप रहो, जवाब मत दो, बर्दाश्त कर लो, नौकरी छोड़ने को कहे नौकरी छोड़ दो, ये नहीं करेंगे, ये मत करो। तो हम अपनी स्पेस सीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जब ऐसा मोमेंट आता है, फिर बेटियां अपनी माओं को रिजेंट करती हैं कि आपने क्यों हमें मशवरा दिया। आपके mm, मशवरे सुन सुन के हमने इतने, हम इस पॉइंट पे आ गए कि अब हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। अब हम जो भी हैं उनके गुलाम की एक जिंदगी गुजार रहे हैं हम। तो आई थिंक दैट ये एक अच्छा पॉइंट था। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, या बताया है मैंने mm, सोशल मीडिया पे, कि सरवत नज़ीर से जब मेरी बात हुई थी इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए, जब मैंने उनसे पूछा mm, कि mm, आप क्या चाहती हैं कि लोग क्या समझें इस ड्रामे से, क्या फीडबैक mm, लें या क्या टेक अवेज हैं। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि लोग, एक तो बुजुर्ग जो हैं वो नए जमाने के तकाजों के साथ चलना सीखें, और जो नए बच्चे हैं वो तमीज से इख्तलाफ करना सीखें। तो हमने mm, डेफिनेटली लैला की माँ का थोड़ा एटीट्यूड लैला से ज्यादा सख्त देखा, लेकिन हमने लैला के कैरेक्टर में ये बहुत सारी इंस्पिरेशनल चीजें ली हैं कि वो नहीं बदतमीजी करती, वो कॉम्प्रोमाइज भी करने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा साहब, एक और बात भी है, mm, पता है कि लड़कियां लैला जैसी क्यों हैं, लैला को कैसे मोहब्बत क्यों हो गई, कैस ऐसा क्यों है, कैस नहीं है, और लैला को नहीं सुननी चाहिए, लैला को ये करनी चाहिए यार। अगेन गोइंग बैक टू गाइज, आप लोग देखिएगा वो मावरा वाला इंटरव्यू, वो लैला इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मावरा, ऑब्वियसली शी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। मैं भी बहुत सारी चीजों को, मैं बहुत सारी चीजों के साथ पुटअप करती हूँ ना, बहुत सारी चीजों के साथ मैं पुटअप नहीं करती, जो लैला कर रही है मैं नहीं करती। mm, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि लैला जैसी लड़कियां भी तो है ना, mm, हैं, और वो फेस कर रही हैं इस तरह की सिचुएशंस। तो मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसके ऊपर हम बहुत बात करते हैं ना सदफ, आई थिंक जमा mm. तकसीम इज टीचिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड फैमिलीज गुड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। व्हाट्स योर टेक? नहीं नहीं, आई एग्री विद यू टोटली. शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा कि वाई, बिकॉज आपकी ऑटोमेटिक ट्रेनिंग है कि हम्म इफ समवन इज पर्टिकुलरली ससुराली टाइप के आर बीइंग बदतमीज, डोंट इमीडिएटली, बिकॉज वो ये ना कि कैस की माँ ने जो मर्जी बोला हुआ, हम्म राइट, हम्म वो चाहे किसी का कत्ल कर रही हो, द हम्म मिनट यू आंसर हर बैक, सारा कसूर आपका होता है. हम्म दूसरा बंदा आपकी इतनी बेइज्जती कर रहा है, बट व्हेन कैस कम्स होम, इस तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की है, ये हम्म, नहीं सोचना कि मेरी माँ ने तुम्हें क्या कहा था. हाँ राइट. हाँ सो दिस इज काइंड ऑफ हमारा कल्चर है ये.
right? हम्म So but then I thought कि अब बस बड़ी हो गई है, and I हम्म think that Laila's mother did exactly the right thing, बेटे आप जाओ. And I हम्म think in the long term that is going to work out, because यस one of the things is कि Cass and Laila's relationship is rock solid. थोड़ी हम्म सी कैस में आई नो लोग कैस को बुरा भला कह रहे हैं, हम्म लेकिन इफ यू कंपेयर दैट टू द रिएक्शन ऑफ men 20 years back or या whatever, तो या I think Cass is actually quite reasonable. और लुक एट Maybe, पामाल, लुक एट yeah. पामाल में Hmm. उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर जी, Which is from the 90s, टेरिबल right? But वो अच्छा उस्मान मुख्तार का character के he is narcissist or whatever, but हम्म he is doing it because I think, and this is one of the reasons I tweeted earlier, कि जंजीबील आसिम ने ये लिखा है जी या खलील रहमान कमर, because Sabah Kamar's character is set up to fail, and we'll हम्म come to that if we have time, right? हम्म But coming back to Jama Taksim, so no, I don't think that she was wrong to speak up. She was absolutely right कि वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि दूसरा बंदा आइडियल हो, हम्म और पार्टी ए जो है ना वो बदतमीजी करी जा रही है, वो तो हाँ है ही बदतमीज, वो तो हाँ है ही बड़बोली, वो तो है हाँ ही, अच्छा दिस इज, विलेनाइज और डीमोनाइज करना होता है ना हम लोगों ने हाँ नहीं, अच्छा दिस इज एन एक्सक्यूज अ लॉट ऑफ पीपल गेट, यू नो, हम्म आई मेट दीस पीपल, वो है ही ऐसी ना, वो तो बदतमीज है, तुम हाँ चुप रहना. हाँ दिस इज नॉट जस्ट विद फैमिली रिलेशनशिप्स, इज विद फ्रेंड्स एज वेल. नहीं उसकी तो आदत है ना, मुंह फट सी है हाँ वो, तुम क्यों तुम लग रही हो तुम उसके, वो तो नहीं है ही बोल ऐसी, रही. हाँ वो हाँ तुम मत मुंह कि लगो ना, भाई तुम मत जवाब दो हाँ यू सफर इंजरी आफ्टर इंजरी, लेकिन जवाब मत देना, हम्म। राइट? So that is a normal human reaction कि she was defending her child. और वो जो the kind of dialogues they were talking, आपको तो पता ही नहीं होगा नमाज क्या है, क्योंकि they are insecure, कितनी well educated family हमारे सामने बैठी है, मतलब ये भी तो right? देखे ना, ये जो लोग Yeah. रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं अपनी Yes. पासनाई दिखाने के लिए कि जी हम देखें तस्बीह हर वक्त पढ़ते रहते हैं, हम तो Hmm. जुमे की नमाजें नहीं छोड़ते, हम तो ये नहीं करते, तहज्जुद Right. में उठते हैं, नमाजें पढ़ते हैं. इसीलिए मुझे लगता है वो जो लोग जो बहुत ओवर्ट करते हैं ना किसी भी चीज का, एक्चुअली रिलीजन Hmm. पे आप कुछ भी देख लें, हम कोई भी चीज जब ओवरली दूसरों को दिखाते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपने पीछे छुपा रहे होते हैं, अपनी Hmm. कोई कमी या अपनी कोई छोटापन कुछ छुपा रहे होते हैं, कोई इनसिक्योरिटी होती है. मतलब पैसे का इतना खामखा में शो शो ऑफ करना, जैसे वो जो उसकी निगत है, निगत Hmm. कैसे हर चीज में, मेरे भाई तो ऐसा, मेरा भाई तो वैसा, लेकिन आप देखें ना वो कितनी ओवरऑल इनसिक्योर औरत है, क्योंकि उसकी मियाँ से रिलेशनशिप वियर्ड है, वो ट्रस्ट नहीं करती अपने हस्बैंड को, और वो Hmm. खुद भी Hmm. एक काफी मैनिपुलेटिव किस्म की औरत है, राइट? तो वो आपके इनसिक्योरिटी तो आपकी आ जाती है जब आप मैनिपुलेटिव होते हो. एंड देन The parents have done this. Have you noticed that यस, scene? Did you remember that scene where she's smiling instead of saying कि let's resolve this issue? वो हंस रही है वो जो कि मेरा हस्बैंड को पाँव ऊंचा डांट, हो गया. हाँ Yeah, जो जब उसका हस्बैंड को डांट हाँ मियाँ पड़ती को है. डांट पड़ी होती है, हम्म. हाँ, that was such a weird reaction, but yeah, there you go, हम्म. that's the kind of person she is. I think one हम्म. more thing is really amazing about Jama Taksim, which I wish that other channels would learn from. जब हम ड्रामे हम्म. बनाते हैं about families, about हम्म. conflict within the हम्म. family, जो ये किचन ड्रामा जिन्हें हम कहते हैं, आई थिंक रियलिस्टिक होना हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा. हम हम्म. शायद वो स्टार प्लस के भाव में इतना बह जाते हैं कि हमने बहुत सारे ड्रामों की सिचुएशंस में ना वो रियलिज्म हमने हटा दिया, जो हमारे ड्रामों की ब्यूटी होती है, जो हम्म. कि जमा तकसीम में हमको दिखती है. जमा तकसीम में जब वो टेबल वाला सीन है पूरा, कि सब बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, हम्म. तो कहीं भी ये नहीं हुआ कि जब उसने कहा कि हमने बेटी को इतना पढ़ाया, घर लिख में तो घर घर पे बैठाने के लिए तो नहीं पढ़ाया ना, लिखाया. हम्म. अगर कोई ये जियो का ड्रामा होता तो क्या होता, डन 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 डन, तुझे Yeah, and बुझाऊं. then you have reaction sequences. But I think that one thing I wanted to also point out about this religion thing, right? हम्म There are people, and this is where Sarwat Nazir, I really admire her. या कि उसने दिखाया है कि obviously जो उसकी माँ है, Tazeen Hassan, amazing. Amazing, so good, yeah, Amazing acting. so I love the way. There are people that look down on too much religion, and there's a hmm. real reason for it Yeah, because of the behavior of this kind of person. exactly. People They who are give it a bad so, name. Hmm. yeah, वो जो I have seen this ना in England बड़ा होता है हलाल खाना है यार, हम आप खा रहे हो, right? When what I mean by halal is this ज़बीहा, is this ज़बीहा, that's great, right? लेकिन Yes. आपके अगर ethics सही नहीं है, Hmm. आपका behavior सही नहीं है, and then your religion counts for nothing.
या And this is what I remember in my parents' generation. लोगों को पर्दा रखना, अखलाक से मिलना, hospitality, not being mean to people, helping them when they need, was considered like the paramount ethics of being a religious person. लेकिन एग्जैक्टली। अब ये है कि भाई your mode of dress, what you eat, and the tasbih in your hand. And unfortunately, this happens, right? It's just like, I think it was Rumi who said, or किसी ने उनसे पूछा कि what kind of music is haram in Islam? तो उन्होंने कहा था, and I may, please correct me if I'm wrong, कि जब चमचियां बजती हैं ना खाली प्लेटों में गरीबों के घरों में, हाँ। that music is haram. हम्म। एक्चुअली वही बात है ना कि हम लोग सब एक दूसरे को हम्म फिंगर पॉइंटिंग में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं। हम्म हम सबको एक दूसरे, जैसे आपने नोटिस किया होगा ना कि पाकिस्तान में तो बड़ा कॉमन है ना कि वो व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू वेयरिंग दीज क्लोथ्स, यू आर नॉट मुस्लिम, right, काफिर एंड फलाना। हम लोग क्या सारा वक्त यही चल रहा होता है, हम लोग सब अच्छा अपने, unfortunately. हम खुद अपने घर में क्या कर रहे हैं, हम खुद अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। Right. लेकिन इंस्टाग्राम पे हमने जाके पुलिसिंग जरूर करनी है कि अगला क्या कर रहा है। एंड अगेन दिस hypocrisy इज शोन सो ब्यूटिफुली इन जमा तकसीम। हम्म लॉट ऑफ पीपल वर लाइक, मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े जो लिखे होते हैं ना फेसबुक पे, लंबे हम्म लंबे लोग ऐसे लिखते हैं, वो आजकल मैं बड़ा पढ़ती हूँ ड्रामों के ऊपर। हम्म तो किसी ने लिखा कि जी सरवत नजीर तो बहुत ही कोई गलत बात उन्होंने बताई है, इस ड्रामे में गलत बात बताई है, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, जॉइंट फैमिली से इतने फायदे होते हैं, ये होता है वो होता है। अच्छा फिर किसी ने अच्छा इसका एक फ्लिप साइड हमारी वो कवाम आ गई ट्विटर के ऊपर, जो हमारी जेनजी हम्म बच्चियां बैठी हैं, ओ माय गॉड लगता है ये फिर उसी स्टूपिड मैसेज की तरफ जा रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में ही रहना बेहतर है और ये है वो है। हम्म मैं ये बात कहना चाहती हूँ, और मैं आई थिंक जो मैंने सरवत की बातों से भी अखज़ किया है वो ये किया है कि देखिए हम्म वो शी बिकॉज अ गुड राइटर ऑलवेज errs on the side of caution and shows you all sides of the story and shows you growth and evolution and then realizing okay what I did हम्म here was good but what I did here is bad and therefore learning from all of this। हम किसी भी एक सिस्टम को गुड या बैड या अप एंड डाउन उसमें इस तरह इंडाइटमेंट नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ लैला की फैमिली के कहीं फ्लॉज थे तो वो थे, लेकिन हम्म लैला की फैमिली की बेटर बात ये कि वो फ्लेक्सिबल हैं, वो अलाउ करते हैं, वो बात सुनते हैं और एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन एट ऑन द फ्लिप साइड फैज जो कि सपोर्ट करना चाहता है मगर फिर भी कर नहीं पाता क्योंकि उसकी फैमिली उसको प्रेशर करती है, उसकी फैमिली फोर्स करती है उसको कि तुम क्या बीवी की हम्म कमाई खाओगे, तुम क्या ये करो, इस किस्म की बातें उसको सुनने को मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि बात ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली अच्छी है या जॉइंट फैमिली अच्छी नहीं है। बात ये है कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले भी रह रहे होंगे ना तो वो फसाद फैला रहे होंगे, निगत की फैमिली, वो अकेले भी है तो फसादी है वो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ रह के बहुत अहसन तरीके से साथ भी रहते हैं। अगर आपकी फैमिली साथ, जैसे अब लैला की फैमिली है वो साथ रह रही है ना इनके, उनके दम से क्या मुसीबत आई है, कोई मुसीबत नहीं आई, बस वो अपनी अगर अपनी बेटी का साइड लेते हैं। और ये हिपोक्रेसी ना मुझे बहुत अच्छी हम्म लगी, इन्होंने पॉइंट आउट की है कि ये जो हिपोक्रेसी है कि देखें आप जिस तरह आपका बेटा है कि आपने बेटों हम्म का यूं किया है तो हमारी भी बेटी है, तो जिसकी बेटियां ना हो वो क्या करे जी, वो सब्र करें। एंड आई वांट टू कमेंड बेओराना जफर फॉर दिस रूल बिकॉज ऑल्दो आई फील लाइक शी इज अ बिट लाइक ओल्डर, शी इज अ लॉट ओल्डर हम्म बट नहीं, बड़ी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। she is या hilarious and I love the way that she's, and I love that everybody is keeping it as realistic as possible। जावेद शेख के कुछ जुमले बहुत तल्ख जुमले हैं, बहुत सख्त जुमले हैं, लेकिन he's saying it लेकिन so सॉफ्ट softly, सॉफ्टली, he's हाँ। saying it so nicely। अच्छा you've noticed something that the whole drama is very hued, very pink and soft, and there are no harsh moments, there are no hard dung dung ding ding dang dang, and that is what makes it all relatable। So props to Ali Hassan for that, props to हम टीवी for that। and again I want to commend हम टीवी के, जितनी मर्जी भी ऐसे डब्बे ड्रामे बन जाते हैं हम टीवी के ऊपर, लेकिन फिर भी हम टीवी कहीं ना अपनी साइट मेंटेन रखता है। दे कीप देयर आई ऑन द बॉल। जियो तो हैज लॉस्ट इट, जियो तो पता नहीं क्या कर रहा है, बट ए आर वाई समटाइम ना वो इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभी ए आर वाई वाले, लेकिन एट द एंड ऑफ इट आई थिंक हम टीवी इज लीडिंग द चार्ज इन व्हाट इट मीन्स टू ब्रिंग मीनिंगफुल कंटेंट। हाँ, डेफिनेटली जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इट तो वो डेफिनेटली हिट्स द आइकॉनिक मार्क। होती है, हाँ आई हाँ आई आइकॉनिक आई होती है। I have to say that Jama Taksim, because देखो, if you think about it, Gen Z people are talking about it, and that's amazing. And हम्म। you get older people watching it, हाँ taking हाँ it, right? मेरी English Urdu, right? मिक्स So हो a गई lot है, of सही people are है, इट्स taking नॉट, it. लॉट ऑफ पीपल आर देखेंगे इट एंड इट्स फाइन। Yeah. हाँ लाइक So लॉट ऑफ पीपल आर बर्दाश्तोफाइंग सर्टेन yeah. थिंग्स एंड लॉट ऑफ पीपल आर देखोफाइंग दिस। हाँ
ठीक है। So I am impressed. One last thing I was going to say is, one thing is, हम लोग कहते हैं वो family system में, and the comparison between a nuclear family and a family system. I took it the flip way, अच्छा। because the two bahus जो older ones हैं, they are suddenly remembering अच्छा नहीं फायदे थे वहाँ रहने के. हम्म। But I think that in a few episodes down, because Sarwat is a good writer and Ali Hassan is a good director, हम्म। you will see कि असल में दैट वो जो परों के नीचे रखा हुआ था ना समेट के, वो हम्म। तो बहुत अच्छी बात है, बट इट डजंट अलाउ पीपल टू टू मैच्योर. ग्रो अब एंड वो, लर्न। हम्म। राइट, सो हम्म। यू विल सी कि वो जो बड़ा बेटा है इस उम्र में आके, थिंक अबाउट व्हाट हिज एज इज. या क्वाइट, हाँ, बड़ी राइट, बच्चियां हैं उसकी, बड़ी बड़ी, हाँ। right, and he's so immature, he's making terrible decisions. वो लेकिन if you face the consequences of your decisions, छोटी छोटी बातों में, in the early ओ stages, अच्छा, यू मीन then द अदर you बॉय। learn. द अदर बॉय, यू मीन निगहत का जो हस्बैंड है, उसकी बात कर रही है। No, yes, yes, हाँ। sorry about हम्म। that. जी जी। Yeah, हम्म। Nigat ke husband, if he had faced the consequences of his decisions at an हम्म। earlier stage, this is my thinking, आई right? एग्री। He would perhaps have grown and matured and thought, I don't think I need to do this at this age. लेकिन हम्म। वो अभी अभी they're like teenagers, both sons. वो दोनों ऐसे ही हैं जैसे नए नए वो वही, आप एक वर्ड कॉलेज हर गए हैं. वक्त, आप एक टर्म यूज करती है ना बार बार, स्टंटेड ग्रोथ। तो वो Yes, स्टंटेड ग्रोथ है दोनों की। बट ओवरऑल बहुत yes, अच्छा प्रोडक्ट है, आई होप कि आगे भी yes. ऐसा ही चलता रहे। मतलब काफी सारी एपिसोड्स हो गई हैं, इट Mm, हैज नॉट डिसअपॉइंटेड मी फॉर अ सिंगल एपिसोड, दैट्स ह्यूज। दैट इज अ mm. बिग बिग क्लेम फॉर अ ड्रामा टू मेक, एंड आई एम वेरी हैप्पी सो फार. Another drama which I think has its moments with us but then also tends to become like, what is this, is biryani. Oh my gosh, it's getting, acha, this is the thing, you can tell what a Pakistani drama is. People are going to be, what do you mean Indian drama, right? Hmm. I'm telling you, just compare Hmm. कैसी तेरी खुदगर्जी मार्क टू, यानी कि मेरी जिंदगी है Hmm. टू, right, with biryani. Hmm. Biryani, all its faults, whatever, you notice that we have been so long, I'm almost fed up हो गए, Hmm. exploring emotions, exploring reactions, Hmm. building up the story What का is वापस there? पढ़ने What पड़ is गए. there? हाँ, dig कर करके थक गए हैं, हाँ. Yeah. It's like an archaeological project at this Right. point. So there are, so when I say PTV drama, उसमें भी कुछ गलतियां होती हैं, and then you have the Indian style, which is like, let's get straight to the point, man. Hmm. Right? Hmm. I'm in love and I'm going to sacrifice everything for you. Right? Hmm. Ugh. But I really prefer biryani. That's more my style. I like the way they're exploring things, but अब बस भी करें. बता दें क्या है मुसीबत, बता दें. Gulmeher's character is so annoying to me. I do not like her. I do Mhm. not like Miran, and I think they deserve each other. तो प्लीज आप अच्छा, लोग, हाँ, मुझे निसा गर्ल प्लीज, इफ नॉट राशिद, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ राशिद, एनीवन एल्स, इट्स ओके, गर्ल चिल, गर्ल you the जस्ट. reason I am not a big fan of Rashid is because she's using him, even या though या. I really admire her for her character for this, हम्म. and I think it's good writing. इट्स गुड Okay, she राइटिंग फॉर actually श्योर. went up to, क्योंकि normally ये होता है episode 506 में राशिद को पता चलता, वो कहता है क्या, है. right? So yeah, really, even though the signs are all there. एवरीबडी नोज Yeah, एक्सेप्ट, वो क्या है, Rashid मीर said, मीर का शेर yeah. है. जाने ना जाने बाग ना जाने, जाने ना जाने तू ही ना जाने बाग तो सारा जाने है. Hmm. मतलब ये वाला हालात है उस बेचारे के, सबको पता है, इनको ही नहीं पता, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये. So she really went up. वो ना मेरी estimation में, I liked her character कि उसने आपकी कोई प्रोडिक्शन है? आप frank होके व्हाट बता यू, दिया. अमिता, आपकी प्रोडिक्शन हम्म, अक्सर आपने मंटो के ऊपर बड़ी क्लोज एनफ प्रोडिक्शन थी. कुछ नहीं. प्रोडिक्शन है आपकी कि अभी क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता मतलब? Well, I personally think that she will accept this. She'll accept Miran. And what's going to happen is either Gul Meher will get a divorce and find a life for herself, right? ओके. Because I think Gul Meher's problem was very illustrated. I know I didn't like Gul Meher from the beginning क्योंकि मुझे manipulative लग रही थी. अब हम्म. मुझे थोड़ी सी समझ आई है. Right, if you go to Gul Meher's world, if you enter her Gul Meher's world, how upset you were कि मीरान ने जरा उसके बेटे को डांट, उसके भाई को डांटा. How हम्म. upset. As the हम्म. mother of autistic parents, autistic children, you would, and I have people in my family who are autistic, हम्म. so I know.
इफ हम्म समवन ऐसे उनको डांटे या उसको ऐसे ट्रीट करे, कितना दिल को तकलीफ होती है। एंड हम्म दिस इज व्हाट गुल मेहर्स डिलेमा इज, कि आई कुड लीव, आई कुड डू दिस, लेकिन हारून का क्या बनेगा? I'll हारून be इज left to the एक्सेप्टेड, mercy लव्ड, of these people. ही इज एक्सेप्टेड, ही इज लव्ड, ही इज टेकन केयर ऑफ। तो डर लगता है कि बाकी की दुनिया क्या करेगा, अगर मिरान ऐसा कर रहा है तो बाकी की दुनिया क्या करेगी? हाय पता नहीं, मुझे तो दोनों बहुत बुरे लगते हैं, मिरान भी और गुलमहर भी। मैंने कहा भी, मुझे दिल चाहता है कि हम्म। मैं दोनों को कहूँ कि भाई आप जो है ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहें या रोते पीटते रहें, इस बेचारी की जिंदगी छोड़ दें। और वो इतना इतना एरोगेंट, मीन और इंटाइटल्ड मुझे अपीयर करता है मीरान, कि आई एम लाइक यार क्या दिखता है तुम्हें इसके अंदर, ऐसा क्या है? और वो मुझे उसकी कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं कि शी इज वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, कि हाँ मैं बैठ जाऊंगी, हाँ मैं कर लूंगी। उसको है कि मुझे अभी भी आई हैव फीलिंग्स हम्म। फॉर हिम, लेकिन ठीक है, आई आई विल ओवरकम देम एंड आई विल डू व्हाट इट्स रिक्वायर्ड टू बी डन, एंड दैट्स दैट। मेरा सिर्फ कंसर्न ये होता है कि एंड में आप ऐसे मर्दों को जब रिहेबिलिटेट करके वाइट वॉश कर देते हैं ना ऑडियंस के सामने, आप कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी पैदा कर देते हैं एक प्रॉब्लमेटिक मर्द के लिए। ये ना करें, मुझे इससे तकलीफ होती है। मैं, मेरी जिंदगी है, तुम्हें भी मुझे यही प्रॉब्लम है, मंटो में भी मुझे यही प्रॉब्लम था, इवन जेंटलमैन में भी मुझे यही प्रॉब्लम था। हम्म। हालांकि अगेन अगर आप इन तमाम को देखें ना, तो जेंटलमैन इनमें से हैज कम आउट लुकिंग सो मच बेटर देन व्हाट इट डिड राइट। एट द टाइम। बिकॉज एटलीस्ट जैसे प्यारे अफजल था, तो मैं प्यारे अफजल या जेंटलमैन हम्म। या जफा की मैं एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि ये वो ड्रामे हैं जिसमें आपने एक प्रॉब्लमेटिक स्टोरी लाइन दिखाई, प्रॉब्लम दिखाया, पर प्रॉब्लम को आपने ये नहीं किया कि नहीं नहीं ठीक है मारता है लेकिन कोई बात नहीं, सही है, माफ भी कर सकते हैं आप। नो बॉस, नो, इसको एक मंतकी अंजाम पे कहते हैं ना, लॉजिकल एंड पे लेके जाओ। तो यहाँ पे जो लॉजिकल एंड्स है ना, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, ना मेरी जिंदगी है तुम्हें, ना बिरयानी में, अब नहीं हो रहा। जिंदगी इतनी आसान तो नहीं है ना कि एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड थिंग्स आर राइट। आई हाँ मीन तो कुछ फिर उसको हम ड्रामेटिक लाइसेंस रोमांटिसाइज भी नहीं, तो होती है। सदफ हम उनको रोमांटिसाइज तो नहीं कर नहीं सकते कर रहे ना ना। वो, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बिरयानी, वो जरा भी नहीं रोमांटिसाइज कर रहे। एंड में वो होगा, दिखा रहे हैं एंड में मिरान का होगा सदफ, प्रॉब्लम। एंड में अच्छा, यू होगा थिंक? सदफ, आई थिंक आई सो। थिंक बट resolving a problem is not romanticizing है। आई थिंक हम लोगों को ना थोड़ी सी एक वो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि एक भाई होता अगर है लड़की हंसी रोमांटिसाइजिंग। खुशी लड़के के साथ जा रही है तो कब रिजॉल्व वो ही जा होगा। रही है? वो नहीं, तो इतना एंड ही एंड की बात ठीक। कर रही हूँ, एंड की बात कर रही हाँ, हूँ, एंड में ये वो होगा। तब है ना कि अगर कोई रेजोल्यूशन होगी, राइट? देखते हैं भाई क्या वो होगा निसा मेरा। इस टाइप की लड़की नहीं है। दिस इज द थिंग है जो अच्छी राइटिंग होती है। और जहां जफर महराज की वो उनकी तारीफ करनी स्ट्रेंथ है, चाहिए, वो हाँ। मत रही है। हम्म। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को, किरदारों को इतना अच्छे वक्त दिया तरीकों है, से बनाया है। और काइंड ऑफ लाइक उनको, इट्स स्पेस लाइक दिया है, ग्रोइंग अ प्लांट, हाँ। राइट? इट्स लाइक सींचा है और वो उनको ग्रो किया हमारे माइंड्स में, कि वो ऐसे लगता है निशा तो नहीं ऐसे करेगी, हम्म नहीं मिरान ऐसे कर लेगा, बिकॉज वो ऐसे लगता है कि नो द उनकी हम्म पर्सनालिटी। वेर एज ये जो अभी जो ये सुपरफिशियल लेवल का ड्रामा है, मेरी जिंदगी है तो, इट्स अ हम्म। वेरी शैलो ड्रामा। एंड दिस इज सो सैड बिकॉज इट कुड हैव बीन रियली I गुड love अगर Bilal ये and चीज कर Hania. लेते I हैं। love Bilal and Hania together. When they're together, it's not exactly like, oh my God, again, तेरे बिन height of chemistry. But वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हानिया is so good and Bilal himself on his own is so good. तो anyway, खैर, can't keep coming back there. सरफ अगला ड्रामा जिसके ऊपर हम जल्दी से बात कर ले, दो तीन ड्रामे हैं। पमाल है, जिनकी शादी उनकी शादी है, जिनकी शादी उनकी शादी पे बात करते हैं, बिकॉज how नेक्स्ट। perfect is that drama? I think it's that perfect. जमा तकसीम के बाद अगर कोई ड्रामा परफेक्ट है ना, या जमा तकसीम के लेवल पे कोई ड्रामा परफेक्ट है, तो जिनकी शादी उनकी, लाइक लव लव लव। Really, really, it's like, you just switch on and you relax, right? Because everything has been sorted out. And this is why we love Pakistani dramas, right? And it's so sweet and मजे का। अच्छा, आप हमें कुछ किस्सा बताने वाली थी कि हाँ some kids हाँ, were थैंक watching यू, it, right? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। सो आई एम टीचिंग अ Mm. लिटिल गर्ल उर्दू these days, in like as a Mm. pastime. Somebody reached out to me on my Instagram and said, I love your Urdu accent. Could you please, Mm. teach my daughter Urdu? And she's this 9-year-old, very bubbly, very sweet kid. So मैं काफी देर ड्रामा देखती रही, फिर मैंने कहा अच्छा, Mm. अब ये काफी देर हो गई है इस ड्रामे में, इसमें खैर हमारे ड्रामों में इतना कुछ इनअप्रोप्रिएट 99.9% ऑफ टाइम नहीं होता। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा आप अपनी उर्दू बेहतर करने के लिए ये ड्रामा देखिए। Mm. तो उसने कहा कि हाँ मैंने देखा, जिनकी शादी उनकी शादी देखा, और वो आगे भी देख रही है। और मतलब मैंने Mm. उसकी अम्मी से भी कहा कि इसमें थोड़ा हॉरर है, आप साथ बैठ के देख लेंगे, वो एनीवे।
मेरे कहने का मकसद ये था, ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि देखें छोटे बच्चों के लिए कंटेंट कितना जरूरी है। और यस। यू डोंट नो कि जो इसके इतने नंबर्स आ रहे हैं उन बच्चों की वजह से आ रहे हैं। बच्चों के हाथ में कोई चीज दे दो तो वो तो उसको पी जाएंगे हैं। और बच्चों की पॉपुलेशन इतनी स्टार्व्ड है हमारे बच्चों की कि उनके पास ना कंटेंट है। अच्छा, एनक वाला जिन की जो बात हम करते हैं, एनक वाला जिन आजकल पीटीवी अपलोड कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे, किसी ने अगर नहीं देखा हो तो वो जाके देख सकता है। एनक वाला जिन जो है उसकी कुछ लोर, जैसे हामून जादूगर का जो है वो कहीं जिनकी शादी उनकी शादी में उमाज भी है थोड़ा सा। आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। तो एनक वाला जिन के अंदर जिस तरह की चीजें, मैंने ट्वीट भी किया था कि एनक वाला जिन में जिस तरह हमारे कुछ लोर्स हैं, हमारे कुछ ऑफ द कफ हमारे रिमार्क्स होते थे, मिथोलॉजी, मिथोलॉजी फोकलोर। है, फोकलोर है, सोसाइटी के कुछ इश्यूज हैं। कि जैसे उसमें एनक वाला जिनमें एक एलियन भी आ जाता है जो कहता है कि भाई ये मैं लोगों को करप्ट करूंगा, मैं ये करूँ, इस तरह की कुछ फनी मोमेंट्स हैं उसके अंदर। फिर वो जो बुरे जिन होते हैं वो एलियंस के साथ मिलते, तो लॉट इज गोइंग ऑन इन द ड्रामा। लेकिन उसकी ड्रामे की अच्छी बात ये थी कि एक तो वो बच्चों पे के लिए एम्ड था, लेकिन इट वॉजंट चाइल्डिश। इट वॉज अ वेरी स्मार्ट शो। अगर आप उसको देखो, 70 पता नहीं 80 एपिसोड, 120 एपिसोड, पता नहीं कितनी एपिसोड्स हैं उसकी एना कॉलेजन की। इट वेंट ऑन, आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोस मोस्ट रन लंबे वाले जो शोज थे इन द हिस्ट्री एट द टाइम। And now you don't have stuff like that. So I think the real triumph of जिनकी शादी उनकी शादी है, जैसे आपने जमा तकसीम के बारे में कहा, कि सब डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी एज के राइट, लोगों को इट्स भी मजा आ रहा है। यूनाइटिंग जनरेशंस। Uniting generations, it's so universal in its appeal that it is connecting with a larger demographic than that niche audience that only likes horror, only likes Wahaj, is watching it for Seher, is watching it for something light. लेकिन लेट मी ऐड टू योर वो जो आप इतनी तारीफें कर रही हैं, लेट मी ऐड टू इट कि देखो, अगर वहाज या सहर ना होते, राइट, हम्म। वो एक स्टार पावर होता है जो एक सर्टन बिल्कुल सेक्शन को बिल्कुल। खींच लाता है। हम्म। फिर वो मजे की डायरेक्शन जो अली हसन ने की है, कि सैफ हसन। जिसमें, सॉरी, सैफ हसन, आई अपोलोजाइज, सैफ हसन ने इतनी मजे की डायरेक्शन की हुई है, एंड दे केप्ट इट एट एन इजी पेस, ज्यादा तेज नहीं है, ज्यादा स्लो नहीं है, एंड द काइंड ऑफ लाइक डम रिएक्शंस ऑफ अली सी, और दैट इज टिपिकल स्टफ दैट किड्स लाइक, वो या जो वो जो सीन है उसका, कि वो सो जाता हर 5 मिनट के बाद ना, थक जाता है वो ना, और वो हाँ, नादिया को इसलिए पसंद करता है कि उसको ये कुछ एक समझ ब्रेन ही नहीं वर्कर आती है। पहेली, उसके लिए राइट, हर दफा कोई और आके सॉल्व करता है पहेली, kids वो खुद कुछ नहीं कर love सकता। that. या They love a dumb, good-looking, वो जो protagonist ना, हाँ। क्योंकि that makes them feel smart ना. या And then वो जो उसके his father and ancestors goes come up and say, बेटा जरा कम सोया करो, कुछ काम करो. या अच्छा, Brilliant. yeah, and also like that the deadpan comedy between Arsalan Nasir and Sidra Niazi. Then Oh, you they have are so and fabulous. Nadia Afghan, oblivious to reality, Yes. doing head-on मेरा collision. दामाद, मेरा मेरा दामाद. दामाद, मगर वो तो पसंद करता था ना लॉन्ग ड्राइव पे, ऐसे ही तो नहीं जाते लाइक बहन बहन बहन। बट शी इज डूइंग इट सो वेल, इट्स ऑल्सो फनी, सो वेल पुट टुगेदर। सो माई द रीजन आई wanted to bring that up was also because look at what children need. Please make more content like this. Right. Please do more content which is aimed at a larger audience, not just the 8 बजे घर पे खाना पकाने वाली औरत, या जो अंकल्स हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि कैसे मर्द मजलूम दिखेगा, जो खलील साहब ने जिस Mm. ऑडियंस को पूरी तरह टैप किया हुआ है। तो ये, या बैड बॉय फेटिश जो हमारा राधेन शाह इज बिकम द किंग ऑफ दैट कैटेगरी। तो आई जस्ट फील लाइक वी नीड कंटेंट लाइक दिस। आई लव द शो। आई थिंक सैयद जिब्रान एंड वहाज वो आर। दे इंटेग्रल पार्ट। अच्छा, वो ना, जैसे आप कोई भी बिरयानी, याद आपने मुझे ताना दिया था, फीकी बिरयानी कौन खाएगा? हम्म। वेल, आई मेड फीकी बिरयानी एंड नोबडी वांटेड टू ईट इट. सो हम्म। यू हैव टू हैव दैट स्पाइसी पार्ट, दैट काइंड ऑफ हार्ड वॉल जिसमें पुश बैक होता है, राइट? हम्म। थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, व्हेन दे हैड दैट होल, वो जो उन्होंने हैरी पॉटर स्टाइल एक कॉन्फ्रेंस की थी वो हाँ हाँ जिन्होंने हाँ सरदारों की. I was like, what हाँ is this? हाँ, no, that was, and I think that अच्छा, lot of people are like, oh, we didn't know जिन का फ्यूनरल जैसे होते हैं ये वो। भाई जिन्स आर अ बिग पार्ट ऑफ, मतलब जो हमारी Mythology, yeah. मिथोलॉजी एंड हमारी जो लॉर है उसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो उनकी डेथ्स, लाइव्स, उनका भी हिसाब है अपेरेंटली। हम्म. उनकी भी सारी जिस तरह मतलब हमारे इंसानों की जिस तरह पूरी एक, सिविलाइजेशन है उनकी अपनी. हाँ उनकी अपनी, तो उसके ऊपर बहुत सारी किताबें और चीजें लिखी हुई हैं। आई एम हम्म. रियली ग्लैड दैट दे टैप्ड इनटू ऑल ऑफ दैट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि
जब Hmm. एनक वाला दिन आप देखोगे ना, तो आपको उसके अंदर ये नजर आएगा, वो इस तरह की बातें करते हैं कि कोकाफ में ये होता है, परिस्तान में ये होता है, Right. चुड़ैलें ये होती हैं, चुड़ैलों की बैक स्टोरी ये है, जादूगर ये करते हैं, मैं अच्छा जिन हूँ, मैं इंसानों की मदद Hmm. करता हूँ, मैं इंसानों के काम आने वाला जिन हूँ, और मैं इस तरह लोगों की मदद करता हूँ। फिर एक बुजुर्ग भी उनमें आते हैं, वो बुजुर्ग भी बड़े हेल्पफुल होते हैं, वो अच्छे बुजुर्ग होते हैं क्योंकि वो अच्छी इबादतें करते हैं, लोगों को अच्छी Hmm. बात बताते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो फिर इस तरह की जो सारी पॉइंट्स है ना, वो एनक वाला जिन में सारे यूज हुए हुए हैं। एंड आई सी, Built up the mythology, yeah, and yeah, actually, we have lost contact with that kind of stuff. exactly. This is why Yeah. it's so surprising to a lot of people. Hmm. हैं, फिर जिन का फ्यूनरल हो रहा है जिन Hmm. का ये हो रहा है, जिन ये भी होते हैं, शादी भी हो सकती है क्या, तो ये देखो सारी ना, चीजें भूल गए हम लोग। हम लोगों ने पीएचडीज किए हुए हैं हैरी पॉटर में, और विकिपीडिया है हैरी पॉटर फैंडम के लिए, ये वो, बिकॉज दैट्स व्हाट क्या और जेके सदब, रावलिंग हमारे छोटे टैप्ड बच्चे इनटू। जो थे, हमारे छोटे बच्चे हिंदी डब्ड कार्टून्स देखते थे, तो उनको ये तो पता राइट। है कि वो जो एक वो क्या बड़ा फनी सा हिंदी हिंदू मिथोलॉजी का भी जो एक होता था, बाल गणेश। बाल गणेश या कौन एक और, देवर सम वो मैं भी देखती थी छोटे मैं जब थी, तो मुझे वो भी दिखता था। तो वो क्योंकि उस जमाने में हमारे घर में भी स्टार प्लस और ये सब आते थे, स्टार वर्ल्ड वगैरह, उस पे वो सारे डब्ड भी होते थे, और कुछ उनके अपने ओरिजिनल सोनपरी टाइप। तो उसमें सारा उनकी मिथोलॉजी होती थी, सारे बच्चों को पता होता था सोनपरी क्या कर रही है, सोनपरी ये करेगी, सोनपरी वो करेगी। और उस जमाने में तो बहुत बुरा हाल था। अब तो फिर हमारे कंटेंट की थोड़ी सी जगह है। उस वक्त तो हमारा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाते थे, एक कोई हफ्ते में दो ड्रामे कोई ऐसे जो मशहूर हो जाते थे, कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से एमटीवी वीजे वगैरह ये सब पूरा कल्चर आया, तो फिर कुछ 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 बदला। You know, and there's nothing wrong in that. It's नो नो, good ऑफ to कोर्स learn about नॉट। other cultures, but बट please आपका know नहीं है ना yourself भाई, as well. मसला ये अपना है भी कि सीख आपका है। नहीं है, आपका कुछ हम्म। नहीं है। हम मैं तो कहती हूँ भाई, बच्चों को सब सारे कल्चर आने चाहिए, और टॉलरेंस बढ़ती है इससे। लेकिन हम्म। आपको अपने कल्चर को भी तो थोड़ा सा आप देखो कि आपने अपनी तो जगह ही छोड़ दी है ना, आप There आपका कुछ is बना ही नहीं रहे अपना। a huge field of literature about jinns. I Yeah. mean, I followed some Twitter accounts that talk about this mythology. There is हम्म a huge, right? The city of Iram, which is the jinn city, right? हम्म Right? The pillar made of steel pillars or stone pillars. तो उनकी एक जगह है. This, I mean, I read lots of books in English about, that You know involve what I jinns. really So, want to yeah. do? It's on Mm. my, like, if anyone's Mm. listening who wants to invest in this, like, just reach out to me. Like, I really wanna do कैसेट कहानी स्टाइल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। Mhm. बचपन में हम कैसेट कहानियां सुनते थे, जिसमें सुनहरी बत्तख, जिंदगी की डोर, जैक एंड द बीन स्टॉक का उर्दू Mhm. वर्जन, सारा कुछ, सिंबाद जहाजी, टार्जन, शेख चिल्ली, Mhm. ये सब चीजें होती थी। ये कहाँ है? ये हमारे बच्चों के लिए है ही नहीं, ना गाने हैं Okay. ना कहानियां हैं। If you want a suggestion, right? हम्म For Arthurul fans, right? And this is हम्म like Islamic mythology, and just like if we were saying, Indian mythology is open to everybody. Islamic mythology is also this is not necessarily religious. जैसे अलिफ लैला की कहानियां हैं. हाँ They हाँ, are coming on शहजादे Tabby. Yeah, it's हाँ it's coming on Tabby, and it's written by the guy who did Arthurul, हम्म Mehmet Bostak. So हम्म वो जो सारी का, and they're coming with English translation very soon. So watch. I think YouTube का channel है Tabby, हम्म Tabii, and from Turkish Radio Television. ओ Right. ओके। So that should be interesting. Because I think it's good to reconnect with that culture because you understand context, you understand भाई मुझे history. Then. उर्दू में बनानी Mm. है, मुझे उर्दू में बनानी है, Yeah. उर्दू में सुनानी है। आई नो बिलाल मकसूद कर रहे हैं, पक्के Mm. दोस्त उनका जो चल रहा है, बट वो भी बहुत छोटा अच्छा. है, और मुझे लगता है और लोगों को भी करना चाहिए, ज्यादा लोगों को करना चाहिए। तो इंशाल्लाह Mm. इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह मैंने हिम्मत दी और मेरी किस्मत में हुआ, तो मैं ये जरूर करूंगी। सिर्फ अगला ड्रामा जिसके ऊपर मुझे बात करनी Mm. है वो, अब दो तीन ड्रामे हैं तो उनके ऊपर जल्दी जल्दी बात कर Mm. लेते हैं। पामाल है, शरपसंद है, और दिल ढूंढता है फिर वही। दिल ढूंढता है फिर वही मेरे ख्याल से आप नहीं देख रही हैं। Mm. I have stopped watching, and for For obvious I'll reasons. Yeah, yeah, I yeah. understand. I understand. I saw it. I think that I have to just quickly say that this is a Mm. very underrated show. Zara अच्छा. and Zahid Ahmed are brilliant in it. एक तो acting बहुत perfect है, Mm-hmm. और रिदा बिलाल की ये one of the better stories है। I know sometimes like Mm. Rida Bilal sometimes loses her way in so many things when it comes to storytelling, but this I think it comes. This kind of story has come so naturally to her that I wonder if this is somebody who she really knew, because the Mm. details are so impeccable in this. And even if it's not, if she's like created this out of like thin air, again Mm. kudos to her. Very very well written story, very very well crafted characters. Zara is playing a very strong girl, very modern girl, and again this is a girl we need to see more of on television.
ऐसा किरदार हमें ज्यादा देखने की जरूरत है टेलीविजन के ऊपर जो। You don't have to be modern to be strong. I think Pakistani women in general, मैं ये जो रोती हुई मजलूम औरतें हमें दिखाती हैं और वो जो भोली बच्ची जो है हाँ, ये they are actually not the norm. मैं देखती हूँ पाकिस्तानी women are so strong. वो इतनी और ज्यादा वो एजुकेशन नहीं फैंटेसी भी है, होती वो हैंडल करती हैं, वो राइट? फैंटेसी है, वो जो रोती धोती औरत है ना, वो उस्मान खालिद भट्ट ने एक दफा कहा था कि कथार्टिक होता है वो उस तरह की औरत को देखना। तो मुझे लगता है कि वो कथारसिस का एक मोड है। वो जो स्टेरियोटाइप या आर्किटाइप I हमें। don't know. I will go the opposite direction. I dare to disagree with OKB and say that no, I think it's debilitating for women. I हम्म। think it puts a mantle of victimhood on them and it tells them that आप helpless हो. I like to see heroines because it, for my mental health, it really helps. I think I'm going to start watching that thing again because it helps to see people overcome difficulties and obstacles because it allows you to see, अच्छा कोई रास्ता है. I I I know wanna some. I wanna be balanced about it. I wanna say Okay. that there is too much of it is definitely what Mm. happens with what you say, then it becomes debilitating for women. But I think there is merit, and I think we've overdone it. I think Yeah. somewhere along the line in our drama industry. अच्छा, फिर बात कर लेते हैं जी शरपसंद की। Are you watching शरपसंद? I haven't seen the latest episode, but I think it's a very good drama. I हम्म। have to say because it's very subtle. It's not like, अच्छा ये आदमी ना सबको manipulate कर रहा है. I know the picture is of him puppety A as a bit OTT, puppeteer, हाँ। लेकिन वो ऐसा writing is so good. Is जंजीबील का ड्रामा है? किसका है ये ड्रामा? ये जंजबील I'm का not है, हाँ sure. हाँ, जंजबील। Yeah, and सारा I really सादैन ने लिखा है, बट मैं बता रही हूँ, मुझे लग रहा है ये जंजबील अच्छा ने लिखा है। लेट मी जस्ट चेक, मुझे anyway, किसी ने करेक्ट Sara किया था। Sadan या जिसने भी लिखा, I do like it because it shows that these kind of people are opportunists, हम्म। right? हम्म। वो ये नहीं कि वो सबको कर रहे हैं तुम ऐसा कर देना और सब उनका कहना माने, नो, वो हम्म। अपॉर्चुनिटी के इंतजार में होते हैं कि ये मौका है, मौका Sarah परस्त. Sadan हम्म, Sayyed, but it has हम्म, Zanjabil. I don't know if there's a connection, but I kept saying this. I'm like, this is Zanjabil हम्म, written all over it. Oh my God, this is so Zanjabil. Because इनके जो previous ड्रामे भी हैं वो भी मुझे कोई इतने ऐसे हम्म, नहीं लगे कि बड़े कोई सिग्नेचर होंगे, बट चलें, कभी कभी कोई बंदा बड़ी अच्छी चीज भी लिख देता है, हम्म, that becomes their signature project. But you know, like you can tell Mera Ahmed has written this. You can हम्म, tell KRQ has written this. You can tell Farhat has written something. Sarwat has written something. तो जंजबील का भी पता चल जाता है मुझे। तो हम्म, इतने हमने वही वाली आपकी वाली बात है, मैं तेरे ड्रामे देख लेते हैं हमें पता चल जाता है। लेकिन शरपसंद की जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात ना, कि वो ये है हम्म, कि शरपसंद ने ये दिखाया कि हम जब हम ड्रामों में या हम कहानियों में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये इविल है और ये अच्छा है। हम्म, शरपसंद की बेस्ट बात ये है कि वो कहीं कहीं वो लाइन मर्ज करता है। हाँ, ये इविल हम्म, है, फिर भी वो ये बोल रहा है कि ये बंदा ना गलत कर रहा है। लेकिन वो ये हम्म, नहीं कहता कि वो जिसके साथ गलत कर रहा है, वो जो एक परफेक्ट विक्टिमहुड वाली बात है, या वो मजलूमियत वाला जो ढिंडोरा होता है जो हम पीटते हैं, जब हम ऑडियंस को ये दिखाते हैं कि देखो जो सबसे मजलूम होगा ना उसके लिए सबसे ज्यादा सॉरी फील करो। शरपसंद का बिगेस्ट सक्सेस ये है कि उन्होंने हीरा मानी का कैरेक्टर, जो कि एक बड़ी इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट, हम्म, बोल भी देती है, जवाब भी देती है, सारा कुछ हम्म, करती है, और वो कैरेक्टर है जिससे हमारी डेमोग्राफिक जनरली ना आइडेंटिफाई करेगी। जो एक ड्रामे की और हम्म, डेमोग्राफिक आपने बनाई हुई है ना, कि वो घरेलू औरत घर में आठ हम्म, बजे जी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप फ्रेश होके हो जाने वाली औरत जो है, तो वो नहीं है। वो औरत वो बिल्कुल नहीं है। वो कहती है ठीक है जी, आपने नहीं करना, बट आई विल, मैं तुम्हें बोलूंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या सच बोल रही हूँ, मेरा सच ये है। और हम्म, वटेवर जो भी उसकी कैरेक्टर बिल्ड उन्होंने किया है, उसके साथ वो बंदा गलत कर रहा है। जो फरासत साहब जो हैं, फरासत का कैरेक्टर ऑन द आउटसाइड वो कैरेक्टर है जिससे हम सब कहेंगे जी ये मोहल्ले के शरीफ शरफा हैं ये मोहल्ले के, और फिर वो क्या कर रहा है। तो आई थिंक दैट दैट काइंड ऑफ लाइक मेंटल ब्रेकडाउन जो उन्होंने किया है ना, मेंटल इमेजरी को जो उन्होंने जाके चैलेंज किया है, हम्म, बहुत कमाल है। बहुत कमाल तरीके से बहुत सारी मुनाफकतों को उन्होंने बेनकाब हम्म. किया है ड्रामे के अंदर। सो आई थिंक दैट। It's definitely very good, but and I keep saying this, मौका प्रस्त होते हैं ये लोग, ये हाँ तो बिल्कुल। खुदा नहीं होते, ये ओहो, हम लोग अपॉर्चुनिटीज हम लोग उनको बनाते देते हैं हैं. ना इनको, हम लोग हम्म, बनाते हैं इनको। हम्म, हाँ ये तो शरीफ हैं, हाँ ये तो ऐसे हैं, इनको तो कुछ बोल नहीं सकते फॉर नो इंसान। रीजन. फॉर नो लेकिन रीजन। मैं आपको ऐसी वैसे कोई बात नहीं, लोग इतने अक्लमंद होते हैं, थोड़ी देर में उन्हें समझ आ जाती है कि इस बंदे की वजह से ना कोई फटा चल रहा होता है, बट वो ओपनली नहीं कह रहे होते, राइट? वो थोड़ा सा छुपी ढकी बातों में, हाँ
हर बात में तो होते हैं, इतने भी लेकिन बेवकूफ पता है नहीं सदा होते होते लोग। हैं, लोग होते हैं बड़े बड़े हम्म। अक्लमंद धोखा खा जाते हैं दुनिया में, कभी वैसा भी होता है, हम्म। मैंने खुद खाए में धोखे। नहीं, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट अ फैमिली परहैप्स, बट मोहल्ले में कुछ इंटेलिजेंट या सादर लोग भी होते हैं जिन्होंने दुनिया देखी होती है, दे कैन पॉइंट इट आउट, बट excuse me, overall I would say this is a very good drama. वेरी लॉजिकल, मुझे People तो should लगता है watch बहुत it. लॉजिकल ड्रामा है। मेरी सबसे पेट पीवी है ये, जब इलॉजिकल हो जाता है मैं कहती हूँ नहीं, अब नहीं हो सकता। हम्म। लास्ट ड्रामा सदफ which we will finish off with is Pamal. अरे मेरी भोली। भोली बानो, भोली बानो मलिका। हाय why do I hate भोली लड़कियां? I सदफ, can you have to someone talk tell to your me? थेरेपिस्ट से बात करें, ये क्या चक्कर है, मुझे ये आपका क्या इतनी बायस है? नफरत है, इतनी नफरत है भोली लड़कियों से। And I and I'm trying to figure it out. I need a therapist, right? But what gets me is that she has centered everything, every part of her life on winning approval from this one man. Yes. Yes, completely, all the time. That's the purpose of life, to keep Raza happy. And when he's not happy, she melts down. And then obviously he see my problem is that clearly she's like, we हमने पहले भी डिस्कस किया था, परफेक्ट विक्टिम नहीं है वो। लेकिन Hmm. मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि रजा के जैसे जो लोग होते हैं, आप अभी भी देखें, आई थिंक दैट इज द रीजन कि रजा के जैसे जो लोग होते हैं, वो मैंने सोशल मीडिया पे जो ये रिव्यूज पढ़े उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं तो सही है, क्या गलत है, अच्छा अच्छा आदमी है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इतना तो मर्द चीख ही लेते हैं। मैं कहती हूँ यार आपके घर में क्या होता होगा, आप भी ये करते होंगे, इसका You मतलब। know what? I see this kind of stuff as some kind of Buddha prasti. I really do. Because what it is you put a human being in place of Allah. Right? And बना देते हैं आप उनको। ये खुदा बना देते हैं कि ये हंसेगा तो मैं हंसूंगी, ये रोएगा तो मैं रोएंगे, एंड देन लेटर ऑन यू वेक अप एंड फाइंड आउट ये तो इंसान है, ये तो इंसान है, मेरी तरह इंसान देयर है। इज अ रीजन। सो Yeah. So what ये I think कि फरहत इश्तियाक और अदर फीमेल राइटर्स वो ये करती हैं, वो औरतों को डिग्निटी देती हैं, चाहे वो औरत गलत हो या बुरी हो, उनको ना डिग्निटी देते हैं, and that's why we like the heroines, we like the protagonists. हम्म। Now what has happened with this immature girl and all of this kind of, by the way, Sabaa Kamal and Usman Mukhtar are nailing it. I think particularly Usman ओ Mukhtar. यस, उस्मान, I यस फॉर think श्योर। amazing, हम्म amazing acting. वो सबा को I don't think she should have chosen her, but अगर वो कर रही हैं तो जहाँ उनकी तारीफ है, they are nailing it कि भाई वो नहीं है कभी हर लहर के साथ वो कभी ऊपर होती हैं कभी नीचे, her emotions are like they're not very stable. वो वो हर नहीं इवेंट है, के वो बाद there is मेंटली a स्टेबल तो reaction. बेचारी नहीं है वो। उसको, And उसके रिएक्शंस भी बड़े एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं उसके शी लिए। इज नॉट अ होल पर्सन, क्योंकि वो एक फैंटेसी में रहती है, क्योंकि वो हर वक्त अपने फादर शी इज लुकिंग फॉर दैट फीलिंग, इवन दो, अप्रूवल। एंड आई थिंक शी इज डेफिनेटली इन नीड ऑफ थेरेपी। रजा तो रजा है, राइट, बट यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ। शी इज द हम्म वन इन नीड ऑफ थेरेपी कि भाई, ताकि शी रियलाइज के शी इज इनफ, हम्म। शी इज लेकिन इनफ। यार सदब ये भी तो होता है ना, थेरेपिस्ट जैसे कहीं लिखा हुआ था कि थेरेपिस्ट ये कहते हैं कि द पीपल हु एक्चुअली नीड थेरेपी आर नॉट द वंस हु कम टू अस, राइट, दैट्स ट्रू। यू नो। तो रजा जैसे लोगों के ऊपर हम जिम्मेदारी भी डालनी चाहिए कहीं कि क्यों और कहाँ हमने ऐसे, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है कि व्हाट इज हु इज अ नार्सिसिस्ट, व्हाई डज सोसाइटी अलाउ नार्सिसिस्ट टू बी सो मास्क्ड। हम लोगों के कहते हैं अरे नहीं ये जरा ना आप खुद पसंद है, लेकिन खुद पसंद होना और नरगिसियत। कोई ना, ये खरा बंदा है, ये हाँ जरा सा खुद पसंद है, तुम ठीक हो जाओ, तुम हाँ हाँ, तुम तुम ठीक हो ठीक जाओ, रहो। तुम चुप रह हाँ, लो, तुम इतना तो मर्द कर ही लेते हैं ना, इतना तो चीख ही लेते हैं, अरे इट्स तुमने नॉट गलती की जस्ट थी। मैन, इट्स नॉट हाँ, ओ जस्ट ऑफ मैन, आई हैव कोर्स सीन women plenty can be, of women. women can be हम्म। extreme narcissists as well, women are terrible narcissists as well, and you know when women are narcissists तो बस वो क्या होता है, मैं क्या ही बोलूँ, आप निगहत को देख लें जमा तकसीम में, शी इज अ नंबर वन नार्सिसिस्ट। सो मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ कि बमाल के ऊपर बात करते हुए ना लोगों हम्म। को थोड़ा सा ये याद रखने की जरूरत है कि यस मलाइका मलिका हैज her problems, but eventually the real problem is Raza, and his behavior is the question we should be asking कि if your wife is a bit of a dodo, does that give you the right to say these things to her कि तुम तो छोटे शहर से आई हो। नहीं, अडल्ट, ही इज नॉट अलाउइंग हर टू बी एन अडल्ट। देखो, आप चाहते हो कि आपकी बीवी बने, आपकी टेरेबल लाइफ पर्सन, पार्टनर, बट लाइफ पार्टनर बने, टेरेबल पर्सन। but instead you are encouraging her immaturity, you're not allowing her to mature.
You're not allowing her to grow in mentally or emotionally. तो उसको रखा हुआ है बच्चों की तरह, but then she acts like a kid. See, that's the answer, right? He'll say, अगर आप उससे बात करें, वो बच्चों की तरह act करती है, but if you don't allow someone to make mistakes and allow them that room, तो वो यही रहेगी बट ही mentality डजंट उनकी. थिंक लाइक दिस ही इन हिज Obviously he पॉइंट। doesn't, right? क्योंकि वो हाँ तो पेट है ना, वो खरीदी है उसने. हाँ। और वो उसके देखें जो हम्म. नार्सिसिस्ट होता है ना, उसकी रियलिटी ये होती है कि एवरीबडी अराउंड मी इज हम्म. समथिंग और artifacts or things to be controlled. For them, love is not affect more than affection. कि love is हम्म. about sacrifice and love is about care and love is about empathy. Narcissist को सिर्फ अपनी पड़ी होती है. How am I looking in this situation? But then, I mean, if you look at the flip side, isn't it, क्या उनका नाम है पमाल में, मालिका को, मलिका, right? हम्म और हम्म मालिका, I don't know why I मलिका। keep saying the word मलिका. मलिका को भी थोड़ा सा ना अब मूव ऑन होना चाहिए फैंटेसी, वो जो नॉवल से, and read an actual book maybe about history or something in which facts matter, and she gets some rational, logical thinking instead of. There are some women though that they love living off their emotions, na. So, हाँ वैसे that's a good yeah, point. That is a really good yeah. point because I, they also they because they have centered their lives so much mm, around their partners, mm, even if the partner is terrible or has misbehaved, their entire mm, personalities are destroyed. ये भी है, वैसे आप सही कह रही हैं, ये है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि ये रिकग्निशन पहले तो हो कि आपका पार्टनर टेरेबल है। हमारे यहाँ mm. रिव्यूज में तो ये भी लिखा जा रहा है कि नहीं तो क्या गलत है, उसको तो घर लेके दिया, उसको ये करके दिया, तो अगर वो बीवी तुम अगर ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही तो तुम क्या कर रही हो, फिर तुम क्यों इस पे चीख रही हो, तुम ठीक है जो तुम। और तो अच्छा एक और चीज भी किसी ने कही कि शी डम्प्ड द बॉय, हारिस वहीद वाला बॉय, एंड वेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो व्हाई इज दैट रॉन्ग? I don't think she went for financial stability. उसे तो पता ही नहीं था. I think she saw his car, लेकिन that didn't, she didn't know if he was that wealthy, और वो इतना है भी नहीं. At the most वो एक रेंट पे अपार्टमेंट उसको लेके दिया. Right? I haven't seen any great financial stability. हाँ, उन लोगों से बेहतर है जहां से वो आई है. लेकिन वो I उसके guess कजन से कंपेयर everything कर is रहे थे ना, relative ना. कजन से और कंपेयर मुझे कर रहे थे। ये अनस जो है, आई डोंट थिंक ही इज दैट ग्रेट अ गाय. आपको पता है, किसी की शादी हो गई हो, खासकर वो आपकी रिलेटिव है, हम्म। तो यू आर ट्राइंग टू फ्लर्ट विद हर, यू आर ट्राइंग टू बी फ्रैंक विद हर, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग इमोरल बिहेवियर. दैट्स नॉट मॉरल, नो, और फिर वो राइट? जो इट्स उसको नॉट शटअप कॉल एथिकल. भी देती है, तो वो शटअप कॉल भी इतना वियर्ड शटअप कॉल है कि वो जैसे भी है मेरे शौहर है, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, वो तुम करती हो बहन, तुम उसको बोलो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बात करने की, तुम्हारे वो जो भी हैं वो तुम्हारा मसला है, तुम उसको बोलो कि तुम कितने घटिया आदमी हो जो तुम मुझ पे लाइन मार रहे It हो। was, you see, this is what I don't understand about that whole scene as well. It was very inappropriate. Okay, हम्म। you're a married woman, or हाँ you पाकि say उसको, you love या her. इट वाज वेरी फिजिकल ऑल्सो, आई वाज Yeah, वेरी लाइक ओ intense. टेरेबल, हाँ टेरेबल टेरेबल टू शो। I don't think that's how normal people behave. नो। But then that is Malika, isn't it? Right? एंड I'm दैट्स living बट off my सदफ, डिड यू emotions. ऑल्सो नॉट फील पुट ऑफ Mm. बाय द कजन एज वेल? Of लाइक course आई I did. That's फेल्ट, why I don't. yeah. People are saying he was the green flag, and I say I'm not No, really. no, He's. not at all, Mm, not at all, not at mm, clearly। और जिस तरह वो वैसे भी बिहेव करता था ना रजा के सामने, इट फेल्ट mm. वेरी ऑफ, इट फेल्ट वेरी ऑफ। Completely off. हम्म। Mm. सो इज This is why I'm saying this drama may have been written by KRQ rather than Zanjabil, because it looks like देखो ना, heroine is being set up to fail at every moment. वो कुछ भी करती है, वो कोई भी उसकी relationship होती है, you find out later on Raza was right. And हम्म। then you think, अच्छा, I don't blame the people who are saying कि भाई हाँ, इस औरत को अपने आप समेटना चाहिए, वो सही कह रहा है, वो ये, because that's how the story is set up. Think about it. या अभी यू हैव next अ पॉइंट। नेक्स्ट एपिसोड में ये होना, उस गरीब ने किसी लड़की से वो फ्रेंडशिप वो करी होती है, तो रजा कह रहा था ना करो, पता हम्म। चलता है पुलिस रेड कर रही है फ्रेंड के हाँ घर. हाँ, वो निकल आती है, वो क्या निकल आती है, राइट. वो सम काइंड ऑफ बेचारी पार्टी गर्ल. सम पार्टी वर्कर नजर आ जाती है। खैर, इज देयर एनीथिंग एल्स you'd like to ask us before we wind up? Because I think we have a problematic slew of dramas. Thank God for Jama Taksim and Jinki Shadi Unki Shadi. But like I'm also watching Bahar Nagar. I'm watching I'm not watching Chalbaz, but I wanted to catch on to Chalbaz. And Masoom, unfortunately, I'm still hooked to it. It's a caricature of a show, but I'm still watching. I've heard good things about Mohra.
Maybe Mora is something. I think I'm one of the reasons that I'm kind of not reviewing these dramas. I watch Mohra on and off. It's Hmm. actually not a bad show, but it's one of those kind of like, and I keep saying this Indian style dramas can be everybody has to give a reaction scene and lehne pe dehla and हाँ patte pe patta. तुमने ये किया मैंने वो मैंने किया, ये किया right? टटडे। And हाँ, या I आई गेट इट। really lead का नाम मैं भूल जाती हूँ, लाइबा लाइबा something. खान। हम्म। Right. she's a very good actress and she has a lot of screen presence हम्म। and she's working her way up. कहाँ वो छोटी बहन बनती थी, अब वो लीड है और उसके बल के ऊपर on her shoulders and आगा अली के shoulders के ऊपर वो पूरा ड्रामा ड्रामा चल चल रहा रहा है. है। What हम्म। I want to know is what happened to Mikhail Zulfikar because he was one of my favorites. Why is he Mikal is choosing his actually, roles? but Mikal Hmm. actually is doing really well. He's the only person I like in Masoom. मतलब वो अच्छा, कैरेक्टर भी और वो उनकी एक्टिंग भी, बाकी कैरेक्टर ऐसा है ना. everybody is हम्म. overdoing it like crazy. He is the only one अच्छा. playing it like a normal human being. So everyone else is like, हम्म. निकल जाओ इस घर से, ठह पड़े मुझे छोड़ के हम्म. मत जाओ मेरी बहन। ये हो रहा है वहाँ बाकी ड्रामे में। जब वो स्क्रीन पे आता है ना, थोड़ा बंदा सांस लेते है, ओके somebody is going to speak normal for the next 1 minute. But overall, that drama is so OTT that he's like a breath of हम्म. fresh air. I really like him in the show, but otherwise, I think the whole show is a bit of a train wreck. But these are the guys. Let us know what you're watching. If there's anything else that you think that we should be If we're watching. missing, yeah, if we're missing I something, think we're particularly pretty on much the other covered it. channels, yeah, particularly on the other I channels, think if there you was a feel there's a good Mohalla drama. was a good one Oh, that it people was a were. good drama. It Yeah. kind, you know, like every other drama, it kind of lost a little bit, but I thought it was a good drama, and I Hmm. wish people would watch it. It is a good drama, and people did good work, good direction, good casting, very nice. तो Mm. बिल्कुल जिसने भी गाइस देखना है, कोई रिकमेंडेशन हमें देनी में कमेंट सेक्शन Mm. में बताएं। सदफ, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड बिफोर वी say thank you? No, I just wish, Malika jo hai na, she lives in my head rent free. And I want Malika to read a book on philosophy or logic or history Oh, or no, no, no. science, उसको कोई शॉर्ट कोर्स बायोलॉजी में दे दे या फिजिक्स में, फिलोसफी, राइट. फिलोसफी का शॉर्ट नहीं नहीं, कोर्स करा दें। फिजिक्स फिजिक्स के ऊपर, ठहरो, फलसफे नहीं, फिजिक्स के ऊपर उसको शॉर्ट कोर्स कोई दे दे, लॉजिक, राइट. मैं लॉजिक। पैसे दूंगी वो दाखिल हो जाए, राइट. जिसमें वो ताकि रैशनैलिटी, लॉजिक, रीजन उसके ब्रेन में आए ना. वो मुझे ऐसे लगती है, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, राइट. एंड आई एम लुकिंग एट हर एंड आई एम थिंकिंग, राइट, हाउ डू प्लीज, यू गेट थ्रू यू द नो डे? yeah, हाउ डू यू वो चैंडलर का डायलॉग था ना, हाउ डू यू नॉट फॉल डाउन मोर, यू नो yeah, लाइक। क्योंकि थिंकिंग इज अ बर्डन फॉर हर ना. नो बट स्टिल आई थिंक दिस में फिर भी आई थिंक हम, रजा इज द प्रॉब्लम, वो जैसी भी डम नहीं है। नहीं, वो है तो सही, लेकिन सच, यू सी, यू कैनॉट फिक्स रजा, राइट. हम्म। सो फिक्स योरसेल्फ. But isn't that the problem? Women are asked to be smarter, be more logical, fix No, this. no, that's not what I'm saying. What I'm saying is understand that you are enough, right? And I say this a lot, and maybe I'm being a religion to it, but no one person can fix वो तो can खैर, fill the हाँ, God-shaped hole in नो your नो नो life. नो, हाँ वो तो खैर बिल्कुल सही बात है। बट हाँ, लेट्स सी गाइस, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बिलाल अब्बास के फैंस तो शुरू हो जाओ। सबको डिलीट कर दूंगी मैं, म्यूट ब्लॉक भी कर चुकी हूँ मैं काफी लोगों को, आके मेरा इंस्टाग्राम ढूंढ ढूंढ के वहां पे आके गालियां दे रहे थे मुझे, यार खुदा को खौफ करो। वही वाली बात है I कि can make political comments all I like. Nobody cares, right? I'll have all these strong opinions, but किसी के वो favorite को आप diss कर देना, ओए होए, मेरा they'll question our characters. 100% सारे, मुझे किसी ने आगे भी कमेंट में लिखा है आप जहनी मरीज लगना शुरू हो गई है मुझे। मैंने कहा भाई तेरी इंटायर पर्सनैलिटी इज एन एक्टर, इज वन एक्टर, लाइक हु रियली जहनी नीड्स। मरीज हम है, हाँ, who right? really needs therapy, boss, right now? I am in therapy and I'm very proud of it and I'm very happy of like I've made progress, but I think you might need to consult, maybe एक दो सेशन तो ले ही लो। हैं कुछ ना कुछ हम, मैं और सदफ मिलके क्राउड फंड भी कर देंगे आपके लिए। एनीवे, thank you Sadav, Sadav for your time. Be prepared for the jihad that's about to happen in the comment section with the Bilal and Hania fans. Guys, दे दें कमेंट, जो करना है करें, मगर अपनी जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कीजिएगा, सदफ को फॉलो कीजिएगा उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर। खुदाफिज। Lapis.